See, define bins to present data using define servlet to handle requests, then populate the bins, storing the bin in the request session or servlet context, and then forward the request to a JSP page, and finally extract the data from the bins. In detail, we have discussed these steps that define bin. It means you have to define a class which has a proper structure for a bin. Like क्लास में जो मेंबर्स होंगे उसे हम प्राइवेट रखेंगे, फिर सेटर गेटर मेथड्स रखेंगे. एडिशनली there will be a no argument constructor or a default constructor, and such classes or such objects are also known as value objects because their purpose is to just store the value. Writing servlet to handle request. After defining bin classes, the next step is writing servlet to read the request. Okay, yeah. After defining bins, we will write a servlet which will handle the request from the client and prepare the result, and that result will be put inside bin. And then the bin will be put at some location which is a shared location. We have three such locations available: session, then request, and application. Then populate the bins. It means from servlet you are putting data into the bin. Then you are storing the bin at a particular location from your servlet. There are three such locations available. We have also seen the code snippet to put to define bin and share them by storing them at a particular location, means request, session, or servlet context, that is application. And you can see that we have also discussed that uh, we have also seen the code snippet for accessing bins in JSP. For example, अगर हम यहाँ पे servlet context के अंदर bin को हम store करते हैं, शेयर करवाते हैं, तो फिर JSP से उसे कैसे हम एक्सेस करेंगे, ये हमने कल डिस्कस किया था. मतलब ये तीनों के लिए हमने कल ये चीज डिस्कस की थी कि कहाँ पे रखेंगे और कैसे उसे यूज करेंगे. देन फाइनली वी विल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अवर JSP पेज which will represent that result to the client. For that, we will use request dispatcher object. Request dispatcher is an interface available in Servlet API, and we can retrieve an object of request dispatcher by calling the method get request dispatcher on current request. Then we have a method available in request dispatcher forward. Forward method will forward the request to that particular page. But when we create an object of request dispatcher, we need to mention the URL, relative URL of the JSP page, which will represent the data. It is always a good idea to put that JSP page in WebINF so that client will not directly able to access that page. And this is the syntax of forward method. You can see that forward method needs two arguments, request and response. Yeah, it looks and it sounds similar to the send redirect method, but there are many differences between send redirect and forward method that we have discussed yesterday. And today also we have the next topic in which we will look at some difference between send redirect and forward method of request dispatcher. Okay, it may be asked in the examination also. Small example of forwarding the request using request dispatcher was also discussed. This is a example which is given in your textbook. And finally, forwarding to static resource. If the request submission is paused, then it may cause error when we forward it to some static resource like HTML page. So in that case, we can simply save that HTML file with .jsp extension. HTML file है आपकी, उसमें पूरा HTML का कोड लिखा है आपने. अगर उसे आप .jsp से सेव कर दो तो आउटपुट में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, वो एज इट इज ही रहेगा. लेकिन होगा क्या इंटरनली, पहले वो प्योर HTML की फाइल थी, अब वो जावा की फाइल बन जाएगी. और JSP के पेज में आप जानते हो कि JSP पेज में हम नॉर्मली HTML लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. And finally, for extracting data from the bins, we need to first of all access the bin by using JSP use bin. And to read data from the bin, we can use JSP get property method.
Now summarizing MVC. Let's summarize the MVC code that we have just discussed in the previous topics. That is the steps to implement MVC. रिक्वेस्ट बेस्ड डेटा शेयरिंग, देखो हमारे पास तीन विकल्प है। मैंने आपको बताया कि हम जब बिन को शेयर करवाते हैं तो हमारे पास तीन विकल्प है। आइदर वी कैन स्टोर बिन इन रिक्वेस्ट, और वी कैन स्टोर इट इन सेशन, और वी कैन पुट इट एट इन करंट एप्लीकेशन, दैट इज सर्वलेट कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे मतलब कि रिक्वेस्ट में रखना है तो कैसे रखेंगे उसका कोड स्निपेट, और उसे रिट्रीव कैसे करेंगे वो कोड स्निपेट। हालांकि ये चीज़ हमने अभी पिछले टॉपिक में, मतलब कि जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए उसमें ये चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है। अब देखो, रिक्वेस्ट बेस्ड डेटा शेयरिंग मतलब कि सर्वलेट से आप रिजल्ट जनरेट करते हो, फिर बिन बना के उसमें रिजल्ट को स्टोर करते हो। अब आप बिन को रिक्वेस्ट में पुट करोगे, रिक्वेस्ट में उसको रखोगे, जिससे वो दूसरा जेएसपी का पेज उसे एक्सेस कर पाए, क्योंकि वो दूसरा जेएसपी का पेज और ये सर्वलेट दोनों एक ही रिक्वेस्ट को एक्सेस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम फॉरवर्ड मेथड को कॉल करेंगे ना, तो हम पहली आर्ग्यूमेंट उसमें पास करेंगे रिक्वेस्ट, करंट रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट सर्वलेट में है वही रिक्वेस्ट जेएसपी को भी मिलेगी। इसलिए अगर सेम ऑब्जेक्ट है, सेम रिक्वेस्ट है, तो वहां से जो डेटा रिक्वेस्ट में रखा है सर्वलेट से, वही डेटा जेएसपी में से हम सर्वलेट से निकाल रिक्वेस्ट से निकाल सकते हैं। The servlet store the data that is bin in HTTP servlet request object, which is only accessible to the destination JSP page. इसमें क्या करेगा, इस केस में सर्वलेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसके पास, जो उसे डू गेट में मिलता है, उसके अंदर डेटा को यानी कि बिन को रखेगा, जिससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट जेएसपी पेज है वही केवल इस बिन को एक्सेस कर पाएगा। दूसरे किसी पेज में आप इस बिन का उपयोग नहीं कर पाओगे। मतलब यहाँ पे सर्वलेट में जो बिन ऑब्जेक्ट बना है वो केवल नेक्स्ट जेएसपी पेज में ही अवेलेबल होगा, दूसरे किसी पेज में नहीं होगा, क्योंकि हम उसको कहाँ पे रख रहे हैं, करंट रिक्वेस्ट में रख रहे हैं। बोथ द सर्वलेट एंड जेएसपी विल लुक समथिंग लाइक, जैसा कि नेक्स्ट पेज पे बताया है आपको। देखो ये वाला, already it was shown in the discussion of implementing MVC। सी, यहाँ पे मैंने बताया ना, वैल्यू ऑब्जेक्ट मतलब कि आपका बिन क्लास है ना, उसका नाम, क्लास का नाम। फिर आप उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रेफरेंस वेरिएबल लोगे, और न्यू के द्वारा आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। यहाँ पे दोबारा क्लास का नाम, और यहाँ पे ये उसका कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस तरह से आपका ये बिन बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, बिन ऑब्जेक्ट। अब आप देखो, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जो आपके पास है ना, डू गेट में आपको मिला है, उसके द्वारा सेट एट्रीब्यूट कॉल करते हो। वहां पे पहली आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन, दैट इज की, और वैल्यू क्या दिया आपने, वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ पे बनाया। तो आप रिक्वेस्ट में स्टोर कर रहे हो उस बिन ऑब्जेक्ट को। फिर आपने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाया, डिस्पैचर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और वहां पे आपको रेफरेंस यानी कि यूआरएल देना है उस पेज का जहां पे आप इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पे हमने अपने जेएसपी पेज का रेफरेंस दे दिया, रिलेटिव यूआरएल दिया, रिलेटिव यूआरएल। तो यहाँ पे जो डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनेगा वो इस पेज के लिए बनेगा। देन वी आर फॉरवर्डिंग द करंट रिक्वेस्ट विथ करंट रिस्पॉन्स रेफरेंस ऑल्सो। तो जब हम डिस्पैचर के द्वारा फॉरवर्ड मेथड को कॉल करेंगे तो अब रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, डिस्पैचर में जिस पेज का यूआरएल हमने दिया है वहां पे। अब नेक्स्ट, वहां पे जाने के बाद मतलब कि वो जेएसपी पेज जहां पे रिक्वेस्ट जाएगी, उस जेएसपी पेज में कुछ हमने ऐसा किया होगा, जेएसपी यूज बिन आईडी इक्वल टू की। देखो यहाँ पे जो हमने आ, दिया था की, वही नाम हमें यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे हमने की ऐसा नाम दिया है, तो यहाँ पे हम आईडी क्या देंगे, की, क्योंकि वो जो बिन ऑब्जेक्ट अभी रिक्वेस्ट में स्टोर हुआ है
उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? की। कुछ भी रख सकते हो आप। अब टाइप यहाँ पे उसका क्लास का नाम, वो क्या है? वैल्यू ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है। देन स्कोप इक्वल टू रिक्वेस्ट, मतलब कहाँ पे रखा है, उसको कहाँ से ढूंढना है? रिक्वेस्ट से, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने उसे कहाँ पे रखा है? रिक्वेस्ट में। एंड देन फाइनली ऑब्जेक्ट मिलने के बाद उसके अंदर से डेटा निकालना है। कौन सा डेटा निकालना है? कोई डेटा जो हमने स्टोर किया है, तो वो हम जेएसपी गेट प्रॉपर्टी के जरिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें नाम देना होगा उस ऑब्जेक्ट का, और फिर प्रॉपर्टी इज इक्वल टू सम प्रॉपर्टी। अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो एक्चुअली जब हम ये लाइन लिखेंगे ना, तो जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर ये बिन ऑब्जेक्ट बन जाएगा और स्टोर हो जाएगा। जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनेगा और उसमें रेफरेंस स्टोर होगा। तो अगर हम ये, आप सोचोगे कि भाई अगर हम ये लाइन ना लिखे, डायरेक्टली ये लिखे, तो देखो अगर ये लाइन नहीं लिखते तो बिन का रेफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा, और क्रिएट नहीं होगा तो हम उसको यूज कैसे कर पाएंगे? क्योंकि देखो हम जब ये गेट प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, तो इंटरनली क्या होता है? इंटरनली गेटर मेथड कॉल होती है। किसके द्वारा कॉल होती है? इस ऑब्जेक्ट के द्वारा। ऑब्जेक्ट को आईडी क्या दिया है? की। तो इंटरनली ऐसा होगा की डॉट गेट, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिखा है वो मेथड कॉल होगी गेट सम प्रॉपर्टी, गेटर मेथड। तो ये लाइन हम कब कब लिख सकते हैं? कि जब हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हो, बनाया हो, तब। तो अगर बनाया नहीं है तो अनडिफाइंड वेरिएबल ऐसी एरर आ जाएगी। तो ये लाइन लिखने से वो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है। ये था रिक्वेस्ट में स्टोर करना। फिर सेशन बेस्ड डेटा शेयरिंग। Servlet store data in HTTP session which is accessible to the same client in any page in current application. Now the servlet and the JSP page will look like this. See again, same thing, but now uh, location is different. जो कोड अभी हमने देखा यहाँ पे, ऐसा ही दूसरा कोड, लेकिन चेंजेस कहाँ पे होंगे? चेंजेस होंगे लोकेशन में। मतलब कि पहले हमने रिक्वेस्ट में स्टोर किया था, अब हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? सी, पहले की तरह ही वैल्यू वेरिएबल बनाया कि जो वैल्यू ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करेगा। फिर एक लाइन यहाँ पे एडिशनल सेशन को रिट्रीव करने की, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। फिर यहाँ पे सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। वहां पे क्या था? वहां पे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट था ना। देखो यहाँ पे क्या था? रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। और अब यहाँ पे क्या है? सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो इसको क्या कहेंगे हम? सेशन बेस्ड शेयरिंग। सेशन बेस्ड शेयरिंग, कि हम सेशन में डेटा को रख रहे हैं, सेशन में हम बिन को स्टोर कर रहे हैं, बाकी का एज इट इज। देखो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट, वहां पे रिलेटिव यूआरएल पास किया, फिर डिस्पैचर के थ्रू फॉरवर्ड कर दिया हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को। and your JSP page will have similar things as our previous example, id equal to key, type equal to some package dot some class। लेकिन scope is equal to अब क्या आ जाएगा? सेशन। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? स्कोप इक्वल टू यहाँ पे रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट में स्टोर किया था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्कोप इक्वल टू सेशन, एंड देन रिट्रीव द प्रॉपर्टी। Then application based sharing, that is the servlet store data in servlet context object which is accessible to the same client or any client within our application। सर्वलेट कंटेक्स्ट में जब डेटा को रखते हैं ना, तो हमारी पूरी एप्लीकेशन में हम कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नॉट दैट वी शुड सिंक्रोनाइज आवर कोड so that the JSP page extracts the same data that the servlet inserted।
हमें अपने कोड को सिंक्रोनाइज करना चाहिए, जिससे क्या हो कि मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक समय पर वो एक्सेस ना करे। इससे क्या होगा कि एक क्लाइंट का रिस्पॉन्स दूसरे क्लाइंट को मिल जाएगा। इसलिए हमें सिंक्रोनाइज कर देना चाहिए उस कोड को जिसमें हम रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो ये उसका कोड स्निपेट, ये भी आपको देखने में सिमिलर लगेगा, पहले दोनों जैसा। और बट चेंजेस कहाँ पे आएंगे? पहले हमने क्या किया था? पहले हमने रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट किया था। फिर सेकंड टाइम हमने सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट किया था। अब ये थर्ड टाइम जो एप्लीकेशन बेस्ड शेयरिंग है ना, उसमें सर्वलेट कंटेक्स्ट का यूज होता है। किसका यूज होता है? सर्वलेट कंटेक्स्ट का। तो हमें सर्वलेट कंटेक्स्ट यहाँ पे रिट्रीव करना होगा। वो हम कैसे कर पाएंगे? तो हमारे पास HTTP सर्वलेट की मेथड है गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट, तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम ये कोड कहाँ पे लिख रहे हैं? सर्वलेट के सब क्लास के अंदर, गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। बस यहाँ पे ये चेंज, पहले केस में यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट था, है ना, दूसरे केस में HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट था, तीसरे केस में ये सर्वलेट कंटेक्स्ट, बाकी का एज इट इज। देन यहाँ पे जब आप उसे एक्सेस करते हो तो आपको यहाँ पे स्कोप क्या मेंशन करना है? एप्लीकेशन। देन रिमेनिंग थिंग्स रिमेन्स सेम एज इट इज। सो ये थी डिफरेंट वेज, ये थे अलग अलग तरीके कि जिसके द्वारा और जिन तरीकों से हम बीन को शेयर कर सकते हैं अपनी सर्वलेट से, जिससे अपना JSP पेज उस बीन को एक्सेस कर पाए और डेटा रिप्रेजेंट कर पाए क्लाइंट को, है ना। तो ये चर्चा मतलब कि काफी दिनों से चल रही है, पिछले 3 दिनों से। तो यहाँ पे आई होप दैट यू ऑल वेर एबल टू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अभी हम प्रैक्टिकल इसका देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम डेमो रखने वाले हैं। बीन का डेमो भी बाकी है प्रीवियस चैप्टर का, तो वो बीन का भी अपने को देखना है, और बीन का हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी हम ये MVC इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना। तो फ्रेंड्स, हैज एनीबडी एनी डाउट इन दिस MVC implementation No, sir. steps, or No, sir. in these three types of bin sharing? ઓકે, ઓકે ભાઈ, લેટ જે લોકો જોઈન થાય છે ટાઈમસર જોઈન થતા જાઓ, મારે રોજ રોજ કેવું ન પડે કે વેઇટ કરવી ના પડે, બરાબર? Now, as I told you earlier today, that we will be discussing forward method versus send redirect, क्योंकि सुनने में एक समान लगता है ना कि भाई करंट पेज पे, करंट सर्वलेट में जो रिक्वेस्ट आई है उसको हम किसी और को फॉरवर्ड करते हैं या रिडायरेक्ट करते हैं। देखो शब्द अगर हम सोचे, शब्द दोनों को अगर हम सोचे तो शब्द ही अ, अपने बारे में ज्यादा कुछ कह जाते हैं। रिडायरेक्ट करना मतलब कि हम क्लाइंट को डायरेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास उसको देने के लिए कुछ है नहीं, तो हम कह रहे हैं कि भाई आप वहां जाओ। जैसे कि आपकी दुकान है मोबाइल की, और आपकी दुकान के बाजू में भी दूसरी मोबाइल है, तीसरी भी है। क्लाइंट आपके पास कोई मोबाइल परचेस करने आता है, कस्टमर आपकी शॉप पे कोई मोबाइल परचेस करने आता है, और आपके पास वो मॉडल अवेलेबल नहीं है या तो आप नहीं रखते, तो आप क्लाइंट को क्या कहोगे कि भाई आप तीसरी दुकान पे जाओ, यहाँ से तीसरी दुकान है वहां पे आपको वो मोबाइल मिल जाएगा। दैट इज रिडायरेक्शन, है ना। अब सपोज कि ये रिडायरेक्शन हुआ। अब दूसरा केस ऐसा है कि मोबाइल्स आप मोबाइल सेल करते हो, मोबाइल की एसेसरीज आप सेल नहीं करते। आपकी दुकान की, आपकी शॉप के तीसरी दुकान जो है बाजू में, वहां पे मोबाइल की एसेसरीज मिलती है। तो क्लाइंट आपकी शॉप पे आएगा मोबाइल परचेस करने के लिए, अगर आता है तो वो मोबाइल परचेस करेगा। जो मॉडल उसको चाहिए वो आपकी शॉप पे मिल जाता है। अब वो डिमांड करता है कि मुझे एसेसरीज चाहिए, मतलब कि उसको हैंड्स फ्री चाहिए, उसको कवर चाहिए, उसको वो टफल कहते हैं ना, ग्लास
वो लगाना है, तो आप क्या कहोगे? आपने मोबाइल उसको दे दिया, मतलब आपने क्लाइंट को सर्व किया। पहले केस में क्या था? पहले केस में, पहले एग्जांपल में, कि क्लाइंट आपके पास आता है, आपके पास वो मोबाइल है ही नहीं, तो आप क्लाइंट को कुछ किसी भी तरह से किसी भी तरह की सेवा नहीं दे पाओगे। आप सर्विस देने ही बैठे हो ना शॉप पे, सर्विस के ही आप चार्ज लेते हो ना, तो आप क्लाइंट को सर्विस नहीं दे पाओगे और कहोगे कि भाई आप वहां पे चले जाओ, ये हमारे पास नहीं है। पूरा आपने उसको रिडायरेक्ट कर दिया। ये सेकंड केस। आपके पास है, आपने क्लाइंट को सर्व किया, लेकिन पूरा सर्व नहीं किया। अभी भी मोबाइल देने के बाद भी उसको जो चाहिए, मतलब कि टफन चाहिए उसको, स्पीकर चाहिए, सपोज बड़ा ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए उसको, हैंड्स फ्री भी चाहिए, तो वो आपके पास नहीं है। तो आप फिर उसको कहोगे कि आपने दे दिया, फिर कहोगे आप वहां चले जाओ, बाकी की चीजें आपको वहां से मिलेगी। आप उसको फॉरवर्ड करोगे कि हमने तो आपको सर्व कर दिया, अब आप वहां पे जाके इस मोबाइल में टफन कवर वगैरह लगवा लो, है ना? तो इसको कहते हैं फॉरवर्डिंग करना। रिडायरेक्शन में हमारे पास कुछ नहीं है, डायरेक्टली हम उसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं। फॉरवर्ड कब करते हैं? हमने तो कर दिया अपना काम, अब बाकी का काम जो दूसरे को करना है, वहां पे हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति देखता है, हमारी शॉप के सामने ही बस स्टॉप है और बस स्टॉप पे खड़ा खड़ा कोई पर्सन देख रहा है, ये दोनों केस को, पहले जो पर्सन आया हमारे पास मोबाइल नहीं, हमने वहां पे भेज दिया। दूसरी बार जो पर्सन आया हमने मोबाइल दिया, और फिर हमने एसेसरीज के लिए तीसरी शॉप पे भेजा। ये दोनों ही केस वहां से जो बंदा देख रहा है उसको क्या लगेगा? उसको देखने में तो यही लगेगा ना कि भाई पहले हमारी शॉप पे आया फिर तीसरी शॉप पे गया। दोनों ही केस में जो कस्टमर है वो हमारी शॉप पे आया फिर तीसरी शॉप पे गया, तो देखने में समान लगता है, लेकिन है दोनों अलग अलग चीज, है ना? तो ये पहला जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, आपको बता दूं कि ये फॉरवर्ड मेथड जो है वो बिलोंग करती है रिक्वेस्ट डिस्पैचर से, और सेंड रिडायरेक्ट मेथड जो है वो बिलोंग करती है एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स से। Though seems similar at first glance, both of these methods have differences. The basic difference can be viewed as the interface to which they belongs. The former request dispatcher and the latter HTTP servlet response. मैंने बताया ना कि जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो ये है कि ये जो फॉरवर्ड मेथड है वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर की है, और सेंड रिडायरेक्ट मेथड है वो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस की मेथड है। Using forward method, the control is transferred entirely on server. No network traffic involved. Whereas in send redirect, it requires an additional network trip. अब देखो, एक्चुअली ये भी होता है कि जब हम फॉरवर्ड करते हैं, तो आपने मैंने आपको कई एग्जांपल्स बताए थे, तो शायद आपको याद हो कि फॉरवर्ड के एग्जांपल में, मतलब सॉरी, सेंड रिडायरेक्ट के एग्जांपल में हमने क्लाइंट को यूट्यूब पे रिडायरेक्ट किया था, हमने जीटीयू की साइट पे रिडायरेक्ट किया था। मतलब कि क्लाइंट हमारी साइट पे आता है और हम उसे किसी और वेबसाइट, मतलब हमारी वेबसाइट के डायरेक्टली बाहर किसी और जगह पे हम उसको भेजते, तो ज्यादा नेटवर्क में उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, हमारी एप्लीकेशन से बाहर निकलना होगा, फिर इंटरनेट के जरिए नेटवर्किंग ट्रैवल करना होगा, और फिर वो उस मुकाम पे, उस वेबसाइट पर पहुंचेगा। बट ऑन दी अदर हैंड फॉरवर्ड में क्या होगा? फॉरवर्ड में हम क्लाइंट को हमारी ही एप्लीकेशन के किसी और पेज में भेज रहे हैं, तो इतना सारा ट्रैवल नहीं करना होगा उसको, हमारी एप्लीकेशन के बाहर नहीं निकलना होगा, हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही दूसरे पेज में वो जा रहा है, तो कम नेटवर्क ट्रैवल और कम वहां पे नेटवर्क ट्रैफिक उसको फेस करना पड़ेगा फॉरवर्ड में। ये भी एक डिफरेंस है। और मैंने बताया था कि जब फॉरवर्ड यूज करते हैं तो कोई स्टेटस कोड सेंड नहीं होता है, ना ही कोई हेडर सेट होता है, लेकिन जब हम सेंड रिडायरेक्ट कॉल करते हैं तो 302 नंबर का स्टेटस कोड सेंड होता है, और लोकेशन हेडर भी ऐड किया जाता है रिस्पॉन्स में, ये इंटरनली होता है। Users see the same URL of servlet with forward method, whereas send redirect changes the URL. जब send redirect हमने किया है, तो जहां पे हमने क्लाइंट को रिडायरेक्ट किया है, वो यूआरएल क्लाइंट को दिखाई देगा एड्रेस बार में ब्राउजर के। लेकिन जब हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो करंट पेज से दूसरे पेज में रिक्वेस्ट चली गई और वो दूसरा पेज रन होगा, लेकिन क्लाइंट को यूआरएल तो
प्रीवियस पेज का ही दिखाई देगा, उसको पता नहीं चलेगा कि अभी ये जो आउटपुट देख रहा है वो कौन से पेज का है। तो ये भी डिफरेंस है। Using forward, it automatically preserves all the request data, whereas the send redirect does not. अब देखो, जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो करंट रिक्वेस्ट जो है उसी को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो डेटा जो रिक्वेस्ट में है वो प्रिजर्व होगा, जबकि सेंड रिडायरेक्ट में वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट बनेगी, प्रिजर्व नहीं होगा डेटा उसमें। इंटरप्रेटिंग रिलेटिव यूआरएल्स इन द डेस्टिनेशन पेज। जो डेस्टिनेशन पेज है हमारा, उसमें जो रिलेटिव यूआरएल्स है वो किस तरह से उसका मीनिंग किया जाएगा, क्योंकि जब वो नेक्स्ट पेज डिस्प्ले होगा जिस पे हम फॉरवर्ड करेंगे, तब यूआरएल तो प्रीवियस पेज का ही रहेगा, तो किस तरह से उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। We already know that while forwarding a request, it is quite different than redirecting it using HTTP servlet response. Yeah. The major difference is the URL used by the destination page. It is the same as the original servlet. जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो जो यूआरएल क्लाइंट को दिखाई देता है वो सेम होता है जो यूआरएल उसको पहले दिखाई दे रहा था, उसके जैसा ही वो होता है। So it is clear that if the destination page contains any relative URL in the image or hyperlink, it will not be able to locate it. अब वो जो सेकेंडरी पेज है हमारा, जेएसपी पेज जहाँ पे हम रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसमें अगर हमने कोई इमेज या हाइपरलिंक ऐसा कुछ यूज किया है और वहां पे जो यूआरएल दिया है हमने वो रिलेटिव यूआरएल है, तो वो शायद वर्क नहीं करेगा, क्योंकि रिलेटिव यूआरएल करंट जो यूआरएल ऊपर दिख रहा होता है उसके रिलेटिव होता है, और जब ये हमारा जेएसपी का पेज रन हो रहा है तो यूआरएल तो सर्वलेट का है। So in such cases, the simplest solution is to give the full server path to the elements which uses relative URLs. तो ऐसे केस में अगर हमने वो जेएसपी का पेज रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है, क्लाइंट को व्यू करने के लिए कि जो सर्वलेट से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होकर आएगी, तो हमें ऐसे जेएसपी पेज में रिलेटिव यूआरएल के बजाय एब्सोल्यूट यूआरएल यूज करने चाहिए, जिससे वो चीज, वो डेटा उसको इजीली मिल जाए सर्वर को। A simple example of MVC. ओके, तो आज हम ये सिंपल एग्जांपल यहाँ पे थियोरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब हमारा डेमो होगा तब हम प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जस्ट सिंपल एग्जांपल to demonstrate the implementation of MVC. Though the example which I present is a simple one and no need to implement MVC. यहाँ पे जो अभी मैं एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम्पल ऐसा है नहीं कि भाई जिसके लिए आपको MVC की आवश्यकता हो, लेकिन MVC का कॉन्सेप्ट, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे प्रस्तुत किया है। जस्ट इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है कि क्लाइंट दो वैल्यू एंटर करता है और वो दोनों वैल्यूज सबमिट होके सर्वर पर आती है। सर्वर पर हमारी सर्वलेट उन दोनों वैल्यू का सम करता है। सम करने के बाद जो आंसर होता है, सम का आंसर, वो बिन में रखता है और बिन को फिर शेयर कर देता है और रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है जेएसपी पेज को, और फिर जेएसपी पेज इस सम को बिन से निकाल कर डिस्प्ले करता है। अब आप समझ सकते हो कि ये छोटा सा प्रोग्राम करने के लिए सर्वलेट तक आने की जरूरत ही नहीं है। अगर सम करना है तो वो ब्राउजर में भी कोई स्क्रिप्टिंग कोड के द्वारा हो सकता है, जावास्क्रिप्ट के जरिए भी वो एडिशन हो सकता है। इसके लिए सर्वलेट की जरूरत क्या है बनाने की? सर्वलेट सम करने के लिए थोड़ी सर्वलेट बनाएंगे हम, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल आपको इजीली दिमाग में ये चीज आ जाए, इस हेतु से मैंने बनाया है। आप भी जब किसी को समझा रहे हो या एक्सप्लेन कर रहे हो तो ऐसा छोटा सा एग्जांपल आप देकर समझाओगे तो अच्छा इजीली कोई समझ सकता है। So it is not compulsory to implement MVC in your application, but it is a good approach.
जो आज की दिनों में ये कंपनी में फॉलो किया जाता है, ज्यादातर डेवलपर्स इसे फॉलो करते हैं, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल एंड स्टैंडर्ड अप्रोच। देखो ये मेरा HTML का पेज, ये HTML का पेज है जिसमें HTML फॉर्म बनाया है, जिसमें से रिक्वेस्ट जनरेट होगी, और इस पेज को हमने अपने सर्वर पे डायरेक्टली रूट में स्टोर किया है। यहाँ पे टाइटल, फिर हेडिंग दिया है, फिर बॉडी में टेबल, और फिर एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म में हमने क्लाइंट से पूछा एंटर फर्स्ट वैल्यू, है ना। हमने क्लाइंट से पूछा एंटर फर्स्ट वैल्यू, वहां पे बाजू में टेक्स्ट बॉक्स रखा जिसका नाम क्या रखा, टेक्स्ट वैल्यू 1। फिर नेक्स्ट लाइन में एंटर सेकंड वैल्यू, वो भी टेक्स्ट है, और वहां पे नाम क्या रखा, टेक्स्ट वैल्यू 2। और सबमिट बटन जिसका कैप्शन क्या रखा, सबमिट। सभी चीजों के बीच में आपको जो चीज नोटिस करनी वो क्या है, यहाँ पे एक्शन। एक्शन हमने लिखा है njsmti.sum सर्वलेट। ये हमारी सम सर्वलेट जो अभी हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे उसका यूआरएल है। तो ये हमारा HTML का फॉर्म जिसमें हम क्लाइंट से दो वैल्यूज मांग रहे हैं। अब देखो ये हमारा बिन, छोटा सा नन्ना सा बिन, बिन क्लास, जिसका क्लास का नाम रखा है नम बिन्स, और एक पैकेज भी डिफरेंट बना के रखा है यहाँ पे, बिन्स पैकेज। हेलो, इज माई स्क्रीन विजिबल फ्रेंड्स? यस सर। ये जो मैंने अभी पेज यहाँ पे रखा वो HTML के बाजू में दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, और सिंपल यस सर। एग्जांपल इम्प्लीमेंटिंग वो वाला दिख रहा है सर, कौन सा मतलब दिख रहा है? डेफिनेशन 4.1.6 वाला अब आया। हाँ, बीन क्लास वाला आया एग्जांपल। ये मैंने एनोटेट किया, दिखाई दिया आपको? मैंने लाइंस, नहीं, ये दिख रहा नहीं दिख रहा है? नहीं। ओके। आई एम स्टॉपिंग एंड अगेन प्रेजेंटिंग। यस सर। ओके। अभी दिख रहा है? हाँ सर, वही दिख रहा है वो यस सर। बीन क्लास वाला। दिख रहा है ना लाइनिंग्स? यस सर। दिख रहा है ना ये? हाँ। यस सर। ओके ओके ओके। सी, ये हमारा बिन क्लास जिसको हमने एक अलग पैकेज में रखा है, बिन्स पैकेज में। और फिर यहाँ पे नम बिन्स करके क्लास बनाया, और फिर इस क्लास के अंदर num1 num2 और रिजल्ट,
ऐसे 3 इंस्टेंस मेंबर बनाए। देखो इसको प्राइवेट अभी मैंने नहीं रखा है, लेकिन हमने ये सुना है, ये हमने पढ़ा भी है कि भाई बिन्स में जो मेंबर्स होंगे उनको हम प्राइवेट रखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, इस बिन को हमें यूज करना है सर्वलेट से। हमें पता है कि हम उसको जेएसपी में एक्सेस नहीं करने वाले, सेट नहीं करने वाले, इसलिए यहाँ पे प्राइवेट नहीं रखा है, अदरवाइज इसको प्राइवेट रखना चाहिए। फिर मैंने देखो कंस्ट्रक्टर भी बनाया, लेकिन डिफॉल्ट नहीं बनाया, पैरामीटराइज बनाया। क्योंकि पैरामीटराइज क्यों बनाया मैंने, कि इस केस में जो मेरा बिन है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा सर्वलेट से, सर्वलेट से इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ये जेएसपी से बनता होता, अगर मुझे जेएसपी से इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता तो फिर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर रखता। क्योंकि तब क्या होता कि जेएसपी से अगर ऑब्जेक्ट बनता है ना बिन का, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वहां पे तो कोई अवकाश है ही नहीं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करने का। ये तो मैं सर्वलेट से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा कि मुझे 2 बार सेटर मेथड कॉल न करनी पड़े, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि देखो हम जावा को जानते हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिफॉल्ट या फिर पैरामीटराइज जो मुझे यूज करना है उस हिसाब से मैं बना सकता हूँ। एमबीसी एक अप्रोच है, पैरामीटर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखना वो उसके रास्ते में नहीं आएगा, अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास की हमने, एक num1 के लिए दूसरी num2 के लिए, दोनों ही वैल्यूज हमने num1 और num2 को असाइन कर दी और फिर रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2 स्टोर कर दिया। तो ये जो तीसरा वेरिएबल है रिजल्ट, उसमें हमने दोनों का एडिशन करके स्टोर किया, दोनों नंबर्स का जो वहां से पास होंगे सर्वलेट से। तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो num1 में वैल्यू आ जाएगी, num2 में वैल्यू आएगी, और रिजल्ट में उन दोनों वैल्यूज का रिजल्ट आएगा, मतलब सम आएगा। फिर जेएसपी से मुझे इन वैल्यूज को रिट्रीव करके डिस्प्ले करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने देखो गेट num1 गेटर मेथड लिखी, गेट num2 गेटर मेथड, गेट रिजल्ट गेटर मेथड। तो इस केस में, इस बिन में मैंने केवल गेटर मेथड को लिखा, सेटर मेथड को नहीं लिखा। वो इसलिए, मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूं ना, तो मुझे 3 अलग से सेटर मेथड भी लिखनी पड़ेगी। लेकिन वही चीज मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कर दी, तो मुझे सेटर मेथड नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर यही चीज हम, जो हमने थ्योरी में पढ़ा कि भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, फिर उसमें सेटर गेटर मेथड होनी चाहिए, अगर उसी तरह से हम फॉलो करके बनाए तो कुछ ऐसा होगा, सपोज n1 n2 और रिजल्ट। तो मैं सिंपली स्मॉल शॉर्ट नेम्स लिख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो केवल डिफॉल्ट रखता हूँ, कुछ कोड नहीं रखता, तो फिर आगे जाके मुझे ऐसी मेथड, ये प्राइवेट रखूंगा, ठीक है। तो आगे जाके मुझे पब्लिक मेथड्स बनानी होगी, पब्लिक वॉइड सेट n1, फिर उसमें मैं आर्ग्यूमेंट पर पास करूंगा n, और ये वैल्यू मैं किसको दूंगा, n1 को। ये हो गई मेरी n1 के लिए सेटर मेथड। फिर मैं पब्लिक वॉइड सेट n2 लिखूंगा और वहां पे क्या करूंगा, n2 को वैल्यू असाइन करूंगा। तो ये मैंने सेपरेटली सेटर मेथड बनानी पड़ेगी n1 n2 और रिजल्ट के लिए। लेकिन इसकी जगह पे मैंने क्या किया कि वो तीनों का काम एक ही मेथड में कर दिया। इसका दूसरा एडवांटेज ये है ना कि सर्वलेट पे केवल एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। अगर सेपरेट मेथड बनाई होती तो सर्वलेट से पहले हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते, फिर 3 लाइन लिखते 3 सेटर मेथड को कॉल करने के लिए। तो ये डेफिनेटली, ये एक्चुअली क्या है, ये लॉजिक हमारे दिमाग में आया, आपके दिमाग में, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई ये 3 लाइंस 3 मेथड सेपरेटली कॉल करता हूँ, कंस्ट्रक्टर भी कॉल करता हूँ, उसकी जगह केवल कंस्ट्रक्टर में सब कुछ लिख दूं, 3 लाइंस मेरी बच जाएगी सर्वलेट से, और तीनों सेटर मेथड को मुझे कॉल नहीं करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। तो ये मतलब कि ऐसा आइडिया है, ऐसा ऐसा लॉजिक हमारे दिमाग में आता है जब हम प्रोग्रामिंग करते होते हैं तब। अब ये मेरा जेएसपी पेज कि जो रिजल्ट को प्रस्तुत करेगा, देखो जेएसपी पेज जनरेट्स द रिजल्ट विच इज समेशन इन दिस केस। अब देखो यहाँ पे हम जेएसपी पेज में ही सम को जनरेट कर रहे हैं, देखो डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे जो सम करना है वो केवल सिंपल सा सम है।
देखो ये अपना जेएसपी पेज है, यहाँ पे बॉडी में बिन को पहले एक्सेस किया, जेएसपी यूज बिन, आईडी इक्वल टू, आईडी क्या दिया उसको, एट्रिब 1 ऐसा आईडी दिया, टाइप इक्वल टू बिन्स डॉट नम बिन्स, ये बिन पैकेज का नाम, बिन्स पैकेज का नाम है, और क्लास का नाम क्या है, नम बिन्स, और स्कोप क्या दिया, रिजल्ट, सॉरी स्कोप दिया है रिक्वेस्ट। फिर यहाँ पे क्या लिखा, सम ऑफ जेएसपी गेट प्रॉपर्टी, किसकी गेट प्रॉपर्टी, एट्रिब 1 की, कौन सी प्रॉपर्टी, नम 1, तो यहाँ पे नम 1 की वैल्यू प्रिंट होकर आएगी, सम ऑफ नम 1 एंड नम 2 की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए जेएसपी गेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू एट्रिब 1 प्रॉपर्टी इक्वल टू नम 2, मतलब वहां पे नम 2 की वैल्यू आएगी, इज जेएसपी गेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू एट्रिब 1 प्रॉपर्टी इक्वल टू रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या आएगा, सम ऑफ नम 1 सपोज की 10 है एंड नम 2 सपोज की 5 है, इज 15, ऐसा आएगा। ये 10 कहाँ से आया, जेएसपी गेट प्रॉपर्टी से, ये 5 कहाँ से आया, ये दूसरी जेएसपी गेट प्रॉपर्टी से, और 15 कहाँ से आया, ये तीसरी जेएसपी गेट प्रॉपर्टी से। ओके, ये था जेएसपी पेज कि जहां पे हम रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। ये हमारी सर्वलेट, एक्चुअली सर्वलेट मुझे पहले दिखानी चाहिए, कोई बात नहीं। अब देखो ये हमारी सम सर्वलेट, याद है ना, HTML का जो पेज है हमारा, उसमें यूआरएल क्या लिखा है एक्शन में, सम सर्वलेट, और ये हमारी सम सर्वलेट की जो रन होगी HTML पेज में रिक्वेस्ट सबमिट होने पर। तो जैसा ही HTML पेज सबमिट होगा तो रिक्वेस्ट में दो डेटा आएंगे, txt वैल्यू 1 और txt वैल्यू 2, जो हमें सर्वलेट से रीड करने हैं। तो सर्वलेट में देखो डू गेट मेथड के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया n1। अब जो रिक्वेस्ट वहां से आएगी, डेटा जो वहां से आएगा वो होगा स्ट्रिंग में, हमें उसे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर txt वैल्यू 1 इंटीजर डॉट पार्स int में ये सब कुछ पास कर दिया। तो पहली वैल्यू किस में आ जाएगी, n1 में, उसी तरह से दूसरी वैल्यू n2 में, txt वैल्यू 2। अब हम देखो नम बिन्स का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नम्स इक्वल टू न्यू नम बिन्स, और दो आर्ग्यूमेंट पास कर दी। तो n1 वहां पे num1 में स्टोर हो जाएगा, n2 वहां पे num2 में स्टोर हो जाएगा, और दोनों का रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में। ये लाइन जब रन होगी, ये लाइन जब रन होगी तो हमारा जो बिन हमने बनाया है यहाँ पे, उसकी ये मेथड मतलब कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 3 आर्ग्यूमेंट वाला। फिर रिक्वेस्ट, अब देखो रिक्वेस्ट ये रिक्वेस्ट क्या है, ये रिक्वेस्ट, यहाँ पे जो अपने को रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिला है ना, वो है रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। अब हम देखो बिन में डेटा स्टोर हो गया, अब बिन को कहीं पे रखना है जिससे सर्वलेट उसे जेएसपी पेज उसे निकाल पाए, रखा। की, की क्या दी हमने, एट्रिब 1, मतलब कि जेएसपी पेज में इस बिन को एक्सेस करने के लिए क्या आईडी यूज करना होगा, एट्रिब 1, और वैल्यू क्या दी, नम्स। ये नम्स क्या है, हमारा बिन ऑब्जेक्ट। तो हमने नम्स जो हमारा बिन है उसको रिक्वेस्ट में रख दिया। फिर रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट डिस्पैचर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और वहां पे यूआरएल पास कर दिया अपने जेएसपी पेज का, जो मैंने वेब आईएनएफ में एक जेएसपी फोल्डर बना के उसमें रखा है। एंड फाइनली डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो तब हमारा जब ये लाइन रन होगी तब हमारा ये जेएसपी का पेज रन होगा। और यहाँ पे भी आप
सकते हो कि हमने यहाँ पे जो नेम यूज किया है वो क्या है, attrib1। ठीक है, आया समझ में फ्रेंड्स? छोटा सा एग्जांपल। Yes, sir. यहाँ पे एक और चीज नोट करना आप लोग कि हमने बीन को दूसरे पैकेज में रखा है और ये सर्वलेट को NJSMTI पैकेज में रखा है। तो बीन का जो पैकेज है ना, या बीन का जो क्लास, वो हमें इंपोर्ट करना होगा। अदरवाइज इस क्लास को जब कंपाइल करेंगे तो एरर आएगी। अब देखो इसका जब ये रन होगा ये एग्जाम्पल, तो क्या होगा, सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, मतलब पहले वो HTML फॉर्म रन करेगा, वहां पे दो वैल्यूज वो एंटर करेगा और फिर सबमिट पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा क्लाइंट, तो रिक्वेस्ट जनरेट होगी और फिर ये रिक्वेस्ट में ये दो वैल्यूज जो है वो रिक्वेस्ट में आ जाएगी। फिर ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वलेट में, सम सर्वलेट जो हमने नाम दिया है। फिर सर्वलेट में ये रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को रीड किया जाएगा, सम किया जाएगा और सम को स्टोर किया जाएगा नम बिन्स के अंदर। और फिर नम बिन्स जो सर्वलेट में आया है उसको रिक्वेस्ट में स्टोर किया जाएगा, शेयर किया जाएगा और फिर इस रिक्वेस्ट को JSP को फॉरवर्ड किया जाएगा और ये JSP पेज रिजल्ट प्रस्तुत करेगा। तो ये पूरा सिनारियो जो हमने अभी डिस्कस किया एग्जाम्पल, जिसमें HTML, JSP, बिन और सर्वलेट 4 फाइल्स हमने बनाई, वो ये उसका वर्किंग। Sum of 10 and 2 is 12. So friends, this was the example of servlet MVC. Has anybody any doubt in this example? No, sir. हाँ, अब देखो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर की बात कर रहे हैं ना, तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस है, उसमें दो मेथड आई हुई है, एक फॉरवर्ड है और एक दूसरी इंक्लूड मेथड भी है। हालांकि ये मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर की चर्चा की है, तो ये उसकी दूसरी मेथड जो है वो भी हमें जान लेनी चाहिए। देखो जब मैंने JSP पेज आपको करवाया, JSP टेक्नोलॉजी जब आपको मैंने डिस्कस की, तो उसमें जब हमने डायरेक्टिव्स डिस्कस की तो एक टॉपिक हमारे सामने आया था कि भाई JSP पेज से भी हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन तब मैंने बताया था कि ज्यादातर केस में JSP पेज से हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि JSP पेज खुद प्रेजेंट करने के लिए बना है, तो वो दूसरे को क्यों भेजेगा, है ना। तो जैसे हम JSP पेज से फॉरवर्ड नहीं करते, हाँ इंक्लूड करते हैं JSP पेज में, उसी तरह से सर्वलेट से हम फॉरवर्ड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो इंक्लूड दूसरे को क्यों करे, सर्वलेट खुद सक्षम है सब कुछ करने के लिए, तो वो दूसरे को इंक्लूड क्यों करे। इसलिए सर्वलेट में इंक्लूड का बहुत कम यूज होगा। फिर भी हमारे पास अगर सर्वलेट में किसी और पेज को हम इंक्लूड करना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर की ही दूसरी मेथड है इंक्लूड, जिसके जरिए हम किसी और पेज को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। It has two methods, forward which is already discussed by us, the other method is include method। और include method में भी हम जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। The method includes the content of a resource, that is, it may be a servlet, JSP or HTML in the response। जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसमें वो किसी और पेज का आउटपुट इंक्लूड कर सकता है। The included servlet cannot change the response status code or set headers. Any attempt to make a change is ignored। मतलब वो जो सेकेंडरी पेज है उसका आउटपुट ही करंट सर्वलेट के आउटपुट में जुड़ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने रखा है आपको बताने के लिए। देखो ये हमारी सर्वलेट है, सर्वलेट फॉरवर्ड, और यहाँ पे देखो डू गेट के अंदर एक वेरिएबल एड्रेस लिया है, जिसमें मैंने किसी और सर्वलेट का URL दिया है, रिलेटिव URL। अब मैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जिसमें मैं पास कर रहा हूँ वो URL। तो ये डिस्पैचर बनेगा इस सर्वलेट के लिए। अब देखो मैंने डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड किया,
मतलब ये सर्वलेट जब रन होगी तो यहां से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी किसे, इस पेज को। मतलब करंट सर्वलेट ने जस्ट रन हुई तो क्या किया, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया। अब ये दूसरी सर्वलेट हमारी, सर्वलेट इंक्लूड। देखो ये जो हमारी दूसरी सर्वलेट है, सर्वलेट इंक्लूड, इसके अंदर हमने क्या किया है, दो स्ट्रिंग वेरिएबल लिए, हेडर और फुटर। हेडर में हेडर डॉट जेएसपी का रेफरेंस दिया, याद है ना, यही जेएसपी पेज हमने वो जेएसपी के एग्जांपल के वक्त डिस्कस किए थे, जेएसपी इंक्लूड डायरेक्टिव के वक्त। फिर फुटर्स डॉट जेएसपी पेज, ये सेम पेज है, उसका यूआरएल स्टोर कर दिया फुटर वेरिएबल में। फिर कंटेंट टाइप सेट किया, रिट्रीव किया रिस्पॉन्स राइटर को, और फिर राइट करवाया टेबल टीआर। फिर रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाया, डिस्पैचर वन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, आर्ग्यूमेंट पास कर दी हेडर। हेडर डॉट जेएसपी पेज है, उसके लिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर का एक वेरिएबल बनाया डिस्पैचर वन। फिर डिस्पैचर वन डॉट इंक्लूड किया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को। तो अब जब ये सर्वलेट रन होगी हमारी, तो वो जो हेडर डॉट जेएसपी पेज है ना, उसका आउटपुट आएगा पहले। फिर हमने लिखा हेलो फ्रेंड्स वेलकम, ऐसा लिखा हमने। तो ये सर्वलेट जब रन होगी तो पहले हेडर्स डॉट जेएसपी का आउटपुट आएगा, फिर हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऐसा आएगा। अगेन हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने रेफरेंस दिया फुटर पेज का, और हम वहां पे इंक्लूड कर रहे फुटर पेज को। तो पहले हेडर्स डॉट जेएसपी का आउटपुट, फिर सर्वलेट का आउटपुट हेलो फ्रेंड्स वेलकम, और नीचे फुटर्स डॉट जेएसपी का आउटपुट आएगा। फिर एंड में हमने टेबल वगैरह सब क्लोज कर दिया। अब ये देखो, ये आपका हेडर्स डॉट जेएसपी पेज, ये आपका फुटर्स डॉट जेएसपी पेज, ये हमने जो जेएसपी में देखा था वही है। अब देखो ये अपनी सर्वलेट का आउटपुट, हेडर जो आया वो हेडर्स डॉट जेएसपी से आया, ये कंटेंट जो आया वो सर्वलेट से आया, और यहाँ पे नीचे जो आप देख रहे हैं वो फुटर डॉट जेएसपी से आया। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट है वो तीन पेज का आउटपुट है, हेडर्स डॉट जेएसपी, करंट सर्वलेट एंड फुटर्स डॉट जेएसपी। तो सर्वलेट में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन पता है ना सर्वलेट जनरली सर्वलेट आउटपुट के लिए नहीं है, आउटपुट के लिए तो हम जेएसपी पेज बनाएंगे, तो सर्वलेट में इंक्लूड करने की बहुत ही कम जरूरत पड़ सकती है। सो दिस वाज इट, एमवीसी पूरा। है किसी को कुछ डाउट? नो सर। ओके, सी एक चीज आपको बताऊं, यहाँ पे हमने एमवीसी इंप्लीमेंट किया, हमने बिन को एक्सेस किया प्रीवियस चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 5 था प्रीवियस यूनिट का, उसमें हमने जेएसपी गेट प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी, जेएसपी यूज बिन, ये सब कुछ हमने वहाँ पे डिस्कस किया। और ये जो सिंटेक्स यहाँ पे हमने देखी वो भी हमने वहीं से सीखी है, प्रीवियस चैप्टर से ही, कि भाई कैसे जावा के कोड को लिखे बिना हम जावा के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो आपने अभी देखा ना कि ये जो आउटपुट हमारे सामने आया वो आउटपुट क्या था, ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो जो आउटपुट आया वो क्या था, ये जो आउटपुट आया सम ऑफ 10 एंड 2 इज 12, वो इस लाइंस की बदौलत आया है। तो आपको नहीं लगता कि वो जो आउटपुट प्रस्तुत करना है वो तो काफी छोटा सा है और उसके लिए लिखना कितना ज्यादा पड़ा, लगता है ना। बट ये तो सिंटेक्स है जेएसपी में बिन को यूज करने की, जेएसपी यूज बिन, जेएसपी गेट प्रॉपर्टी, जेएसपी सेट प्रॉपर्टी एटसेट्रा। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने के बाद वहां पे आता है 10, इतना सारा लिखने के बाद आता है 12, इतना सारा लिखने के बाद आता है 2, बाकी का तो यहाँ पे है ही सम ऑफ एंड इज। तो जो आप सोच रहे हो वो सही बात है कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, इतना सारा लिखने के बजाय सिंपली हम कुछ ऐसा नहीं लिख सकते, सम ऑफ
क्या है वो? एट्रिब वन डॉट नम वन एंड एट्रिब वन डॉट नम टू इज एट्रिब वन डॉट रिजल्ट। सोचो कि यहाँ पे जो तीन लंबी चौड़ी लाइंस लिखी है उसकी जगह पे अगर सिंपली ऐसा लिखकर भी हो जाए, ऐसा कुछ कर दे कोई अपने को, ऐसा कुछ मैकेनिज्म कोई दे अपने को, तो मजा आ जाए। लगता है ना ऐसा? अब सही हो मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं और ये है जेएसपी एक्सप्रेशन लैंग्वेज। शॉर्ट हैंड लैंग्वेज बताया था ना मैंने। जेएसपी expression language is a shorthand language. It express more by just writing few things, few words. तो जेएसपी एक्सप्रेशन लैंग्वेज में हम ये देखेंगे कि कैसे ज्यादा इफेक्टिवली कम कोड लिखने से हम जेएसपी पेज में जावा का कोड इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, है ना? तो ये सिंटेक्स है, लेकिन आप चाहो अगर आपको वो ज़्यादा लंबी लग रही हो तो हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हमारा वो शुरू होगा तब डिस्कस करेंगे। जेएसपी एक्सप्रेशन लैंग्वेज। अभी के लिए यही मैकेनिज्म को हम फॉलो करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स में। So, friends, this was it from today's session. As you told everyone that there is no doubt, and so I conclude.